Hello students, I am Shiba. Welcome to Minerva. So in this lecture we will continue the previous topic which we already started, like in transportation method we have understood lymphatic system and blood. Okay, so now we will understand our continue the previous topic, that is our heart. Now we will understand, heart we will understand, and then we will understand transportation method in plants. Okay, so let's start the topic. सो हार्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है, हार्ट पंप करता है तो पूरा बॉडी में ब्लड चला जाता है. क्या होता है एक्चुअली में, लंग्स, वहां से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आने के बाद क्या करता है, पहले मैं लंग्स बनाता हूं. ओके, छोटा करके दिखा रहा हूं. उस दिन तो इन द लास्ट क्लास, लाइक इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई ऑलरेडी शो यू द फुल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स. आई एम जस्ट शोइंग यू द रफ स्ट्रक्चर. ओके, हियर लंग्स, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया इन आवर एल्वियोली के थ्रू. मैंने दिखाया था ना, एल्वियोली के थ्रू ये ट्रांसफर हो गया इन आवर ब्लड वेजल्स में. और ये ब्लड वेजल्स अभी नीचे आया. ब्लड वेजल्स कहाँ पे आएगा, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया. लेफ्ट लंग से एक, राइट लंग से एक. बोथ द लंग्स विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ ओके, ये हार्ट में आएगा. नाउ इट विल कम इन आवर हार्ट. नाउ इट विल कम इन आवर हार्ट. हार्ट का 4 भाग होता है. ओके, 4 चेंबर होता है. वी हैव 4 चेंबर. नॉट ऑल द ऑर्गेनिजम्स, आई मीन ऑल द एनिमल्स डजंट हैव 4 चेंबर हार्ट. लोअर क्लासेस ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उनका हार्ट का चेंबर कम होता है. लाइक रेप्टाइल्स में कितना होता है, 3. फिशेस में क्या होता है, फिश में 2 चेंबर ओनली. मतलब उसमें ब्लड ना मिक्स हो जाता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड इन देयर बॉडी. दे don't need actually that much of energy, so if some amount of blood will get mixed, they doesn't have any problem. But in our case we need proper fresh blood. So here is septa is present, matlab 4 chamber heart is present. Oxygenated blood आ गया in our heart. This is a septum. Septum means which create the division. डिवाइड कर रहा है इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल को. डिविजन बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. ब्लड यहां पे आ गया, किसमें आ गया, लेफ्ट एट्रियम. Left atrium. Now blood is in our left atrium. Now what will happen? This left atrium will contract, and due to the contraction, the blood will come in our left ventricle. Very good. Oxygenated blood. These all are oxygenated blood. That's why I am showing you in red color. Okay. Left ventricle. Left ventricle में आ गया ये. Now what will happen? These are the valve. Okay, these are the valve. So 4 valve is present. Another one valve is here, another one is here. One is here, another is here.
Okay, so oxygenated blood now in our left ventricle. Now this left ventricle will contract. Obviously ventricle will also contract, and due to the contraction, oxygenated blood will go through our aorta. Okay, this is aortic valve and this is bicuspid valve. So through aorta it will transfer in whole of our body, in our whole body. Okay, in our whole body it will transfer through aorta. Because this valve is present in aorta, so we will call it aortic valve. Okay, I'm showing you a very simple diagram. Okay, so now oxygenated blood is in our whole body. So here the capillaries are present. So what capillaries will do? Gaseous exchange will happen. Okay, these are the cells. Okay, let me show you the oxygenated blood through red color. Okay, इसको रेड कलर से बनाते हैं, बेटर समझ में आएगा. दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहां पे आके टाइनी ब्लड वेजल्स में बढ़ जाएगा, विच विल कॉल कैपिलरीज. Okay, these are the capillaries. And blood cells are present here, these areas. Not black. Blue. Okay. Now, gaseous substances or blood is already transferred. Blood fluid, I mean. Fresh blood or oxygenated blood, oxygen is transferred. Now carbon dioxide will come in our blood vessels again, which we will call vein, obviously. Now this vein will again come in our, actually मैं साइड से दिखा रहा हूँ तो साइड में थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया. Okay, so vein will again collect all the deoxygenated blood in our heart from our whole body. Okay, एक्चुअली ये दो होता है यहाँ पे, ऊपर से एक लाता है. इन आवर अपर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी द ब्लड विल कम फ्रॉम अपर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी विच विल कॉल सुपीरियर वेना कवा, एंड द लोअर पोर्शन, जब नीचे का पोर्शन से ब्लड आ रहा है पूरा बॉडी से, सो उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कवा. अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, हार्ट का डायग्राम बनाना है. दिस इज एक्चुअली योर डबल सर्कुलेशन. ओके, ये एक्चुअली डबल सर्कुलेशन है. सो राइट एट्रियम में ये पूरा आ गया. नाउ ब्लड इज इन आवर राइट एट्रियम. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 present here. Now this deoxygenated blood will come in our, this is the right atrium. Now right atrium will contract and blood will come in our right ventricle. Right ventricle. And again, okay, blood will come in our right ventricle through
tricuspid valve. This one is tricuspid valve, okay, and this one is pulmonary valve. Actually, this is the pulmonary artery. Why artery? Because it's carrying blood from heart to other part of the body. So now right atrium will or ventricle will again contract, and during that time blood will come in our pulmonary artery, and again this pulmonary artery, now this pulmonary artery will come again in our lungs, okay, come again in our lungs, and inside the lung again the gaseous substance will exchange, okay, carbon dioxide will come. So carbon dioxide will, whenever we breathe out, that time carbon dioxide will also excrete from our body. So one portion of the atrium, or the, I mean not atrium, pulmonary artery, and one portion of the pulmonary artery, one part, it will divide into two parts, obviously, because two lungs is present. So pulmonary artery is actually carrying deoxygenated blood in our lungs to heart to lung, and now whenever we will breathe out this deoxygenated blood, from this deoxygenated blood carbon dioxide will excrete, okay. So this is the actually process during the time of drawing. Actually मैं साइड से बना रहा हूँ, आप लोग सामने से बनाएंगे तो पूरा इसको बीच में बनाना, साइड से बना रहा था इसलिए साइड में हो गया है पूरा, ठीक है. So this is actually double circulation. Why we call it a double circulation? Lungs to heart एक बार हो रहा है, फिर से heart to पूरा body टू सर्कुलेशन हो रहा है ना, एक सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ का, इस पोर्शन का, ऊपर पोर्शन लंग्स टू हार्ट, एंड हार्ट टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी टिश्यूज, ओके. सो दो सर्कुलेशन बन रहा है. सो वी विल कॉल इट्स अ डबल सर्कुलेशन. बट लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? ओनली वन सर्कुलेशन. टिश्यूज से, इस टिश्यूज से फ्लूइड चला जाएगा, जाके फिर यहाँ पे वेन में, इस एओर्टिक जो सुपेरियर वेना कवा और इंफेरियर जो वेना कवा है, इसमें आके लग जाएगा, ओके, इन और सबक्लेवियन वेन. यहाँ पे इस आके फिर पूरा डिऑक्सीनेटेड, नॉट ओनली डिऑक्सीनेटेड, एक्चुअली जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड, वो फिर से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों का आ गया. इसके थ्रू, किसके थ्रू? लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू. और लिम्फेटिक सिस्टम क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, सो विल कॉल इट्स अ one circulation, not double circulation, okay. And this is a, in our circulatory system, this is closed circulatory system, blood, okay. But lymphatic, this is open, one end is open, one end is open, so we'll call it a one open circulatory system, lymphatic system. And our blood circulatory system is a double circulatory system. So this is actually happened in double circulation. I hope you understand the double circulation process. Now we will understand one very interesting and important thing, that is our heart. Now I'll show you the heart structure here, okay, not there, actually in middle portion. heart का diagram समझना है. So बस ऐसे ही बनाना एग्जाम में भी. आउटर स्ट्रक्चर हो गया. नाउ विल ड्रॉ इनर स्ट्रक्चर, ओके. हार्ट का जो वॉल होता है, वॉल बनाएंगे. ये वॉल एक्चुअली एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, दैट वी विल कॉल पेरिकार्डियम, ओके. लेटर आई विल टेल यू, वेट. तो बच्चों क्या हुआ यहां पे? आप लोग बोलिए क्या हो रहा है? लंग से आ रहा है, दैट मीन्स पल्मोनरी वेन इज प्रेजेंट हियर. पल्मोनरी वेन इज प्रेजेंट हियर, ओके. सो पल्मोनरी वेन इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दो लंग से ला रहा है, ठीक है, दोनों लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. उसके बाद ये आ जाएगा कहां पे? यहां पे आ जाएगा. दिस इज अ बाइकास्पिड वाल्व, ओके. कहां पे आया? हार्ट के लेफ्ट
left atrium. Now blood will come in our left ventricle. Left ventricle. Here in the middle portion there is a division present, and this division we'll call it's a septum. This is a septum. In the middle wall. If they ask you in your exam that what is the function of septum, it actually divide oxygenated and deoxygenated blood. Okay. Now blood is in our oxygenated blood is in our left ventricle. Now what will happen? This left ventricle will again contract and blood will go in our aortic, through our aortic valve it will go aorta. Okay, so this is aorta. This is aorta. Through aorta it will transfer in our whole body. Okay, इसको बना देना ऐसे ऐसे करके बना देना, पूरा बॉडी में चला जाता है हार्ट aorta के थ्रू. Okay, it will transfer in our whole body. And then what will happen? In whole of our body will produce carbon dioxide, and that carbon dioxide will carry in our vein. And these veins, all those veins, मतलब नीचे से भी गंदा खून, जिसको बोलते हैं गंदा खून, एक्चुअली कैसा वर्ड हो गया, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज्यादा होता है वो कैरी करके लाया. कहाँ से? नीचे से लाया, ऊपर से लाया, नीचे से आएगा ऊपर से आएगा. मतलब ये दो ब्लड वेजल्स आके यहाँ पे ऐड होगा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे से आ रहा है. ओके, सो दिस टू ब्लड वेजल्स वी विल कॉल it's actually carrying, let me tell you, it's actually carrying deoxygenated. So I'm showing you in blue color. Deoxygenated blood आ गया. कहाँ पे आया? राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑडिकल एट्रियम में. ऑडिकल भी बोल सकते हैं, एट्रियम भी बोल सकते हैं. राइट एट्रियम में आ गया. सर से खून लाया, उसको हम बोलेंगे सुपेरियर वेना कवा. और नीचे से बॉडी का लोअर पोर्शन से लाया, उसको हम लोग बोलेंगे इंफीरियर वेना कवा. Okay, these two blood vessels is very important because it's collecting all the ganda खून. Okay, superior vena cava and inferior vena cava. So अभी खून कहाँ पे है? CO2 प्रेजेंट है ज्यादा. CO2 ज्यादा प्रेजेंट है. ओके, सो यहाँ पे एक ब्लड वॉल्व बनाएगा. ओके, दिस वॉल्व वी विल कॉल इट्स अ ट्राइकास्पिड वॉल्व. 3 सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ट्राइकास्पिड लिख ही देता हूँ. और दिस वन इज bicuspid, and this one is aortic valve because it's present in our aorta. जो मैं लेवल कर रहा हूं सब लेवल करना है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है. इस पोर्शन में और एक वल्व होगा. दिस वल्व वी विल कॉल इट्स अ बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन आवर vein, artery, yeah, artery, I mean atrium valve. We will call it a atrium valve. Atrium valve because it's present in our pulmonary artery. Okay, so this pulmonary artery will again go in our lungs. I already show you that how it actually
get inside in our lung. So this is the diagram of heart, and proper diagram. This is the proper diagram. Okay, so all the valves, 4 valves you have to draw, and also you have to draw 4 chamber. Okay, let me tell you, this chamber we'll call it's a right ventricle. Right ventricle. Okay, ह्यूमन हार्ट लेवल के नीचे, मतलब जो भी डायग्राम बनाना है, डायग्राम के नीचे फिगर का नाम जरूर लिखना है, ह्यूमन हार्ट. विदाउट दिस फिगर नेम दे विल नॉट गिव योर मार्क्स. ओके, मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि क्या चीज का डायग्राम बनाया बताया नहीं तुमने. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. हार्ट समझ में आ गया, लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आ गया, ब्लड समझ में आ गया. अभी क्या बचा है? ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया पूरा का पूरा ह्यूमन का. Now we will understand plant's transportation system. Okay, so now we will understand the transportation method in plants. Okay, how plants is actually transferring all the substances from their different part of their body. Body means that plant. Okay, so like our case, we have our special type of system, circulatory system, which the function is to carry or transfer all kind of any substances. So like that way, plants also have different types of bloods, not bloods actually, different type of cells. Okay, those types of cells are helps to transfer any kind of things from one portion of the plant to other portion of the plant. How it actually happening? Let's start. Let's understand that. Okay, so suppose this is a plant. Even it's a plant, I know. Okay, so in plants, so this plant, different branch plant लग रहा है क्या देखने में? ओके, प्लांट ही होगा, लग भी रहा है. ये प्लांट है, पत्ता बनाऊंगा अभी. रूट्स है, रूट में क्या है? फाइन रूट. रूट हेयर भी है ऑब्वियसली. रूट हेयर आर द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द रूट. ओके, यूनिसेलुलर ऑब्वियसली रूट हेयर. ओके, एक सेल से बनता है. रूट हेयर इज प्रेजेंट इन ऑल द रूट्स. These root hairs are the main site to absorb water molecules from soil to plant. Okay, here all the root water is present obviously. यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है सॉइल में. अभी क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा फर्स्ट, उसके बाद ये भेजेगा. कहां पे भेजेगा? पत्ता में भेजेगा. बिकॉज those leaves will produce food by the process of photosynthesis, and during that process we need water also. So water soil से रूट जो हेयर है इसके थ्रू अंदर आएगा. कौन सा प्रोसेस से अंदर आएगा? द प्रोसेस विल कॉल इट्स ऑस्मोसिस. ओके, osmosis. By the process of osmosis, this water molecules will come inside in the roots. ऑस्मोसिस के वजह से ये वाटर यहाँ पे आ गया. एंड लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट ऑस्मोसिस इज. इफ यू नो व्हाट ऑस्मोसिस, वेरी गुड. इफ यू डोंट नो, लिसन. ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच two different type of concentration gradient molecule, means suppose I am this is a beaker. Okay, I mean this is a jar, whatever you say, or container. It's divided by a semi-permeable membrane, and this semi-permeable membrane, both the side is present different type of molecules, I mean liquid. Suppose here the molecule is much higher, and the liquid which is present here, the molecule is very low amount or low quantity. What will happen? The liquid molecule which will transfer from
लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ओके, ये तब तक ट्रांसफर होगा जब तक ये कंसेंट्रेशन दोनों का सेम नहीं हो जाता। इसमें भी कंसेंट्रेशन है, थोड़ा सा कंसेंट्रेट है, ये बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट है। ओके, तो क्या होगा, सपोज इस यहां पे चीनी है, शुगर है, शुगर प्लस वाटर है, और यहां पे शुगर बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां पे ट्रांसफर होगा कम ग्रेडियंट से, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से ज्यादा कंसेंट्रेशन के ग्रेडियंट की तरफ वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा, और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल नहीं हो जाता। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ओके, सो जब तक ट्रांसफर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट समान इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा। सो ये हो गया ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही वाटर मॉलिक्यूल एंड मिनरल्स, समटाइम्स ऑफ मिनरल्स विल ट्रांसफर फ्रॉम द सॉइल टू इनसाइड ऑफ द रूट्स, और रूट में आने के बाद ये अभी जाएगा, ट्रांसफर होगा, कहां पे जाएगा, पत्ता में जाएगा, एवरी लीव्स में जाएगा। ब्लू से नहीं, ग्रीन पत्ता होता है, ब्लू पत्ता ना होता है। ओके, उतना नहीं चाहिए कलर अभी, बस समझो, पत्ते में जाएगा। जाने के लिए एक वेजल्स होता है, एक सिस्टम होता है और सेल होता है। उस सेल को और टाइप ऑफ टिश्यू एक्चुअली, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। ओके, जाइलम इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। सो याद रखना, जाइलम विल ट्रांसफर वाटर ओनली एंड इट्स ए यूनिडायरेक्शनल। ऑब्वियसली वाटर ऑलवेज नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। ओके, तो जाइलम का फंक्शन हो गया, और जाइलम समझ गए जाइलम का काम क्या होता है। उसके बाद फ्लोएम, अनदर टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, आफ्टर द प्रोडक्शन। अच्छा, जाइलम में वाटर ट्रांसफर हो गया, जाइलम के थ्रू पत्ता में आ गया। अभी पत्ता में क्या होगा, यहां पे इन दिस लीव्स व्हाट इट विल हैपन हियर, photosynthesis will happen. After photosynthesis, foods will also produce, they will produce food, and food production के बाद that food जो होता है वो food हर एक पोर्शन में पहुंचाएगा ये। ओके, सो पहुंचाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हेल्प करेगा इसमें। ओके, रेड से दिखाता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज उसमें हेल्प करेगा, और ये यूनिडायरेक्शनली नहीं है, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, कोई किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, हॉरिजॉन्टली जा सकता है। सो इसको हम लोग बोलेंगे, इस सिस्टम को जो सेल इसमें इन्वॉल्व रहता है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम, एंड इट ट्रांसफर फूड। फूड मतलब फोटोसिंथेसाइज के थ्रू हम लोगों को क्या बना है, फोटोसिंथेसाइज से हम लोग बनाया है C6H12O6 ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को हर एक पोर्शन में पहुंचाना है, पहुंचाने के लिए ये काम किया फ्लोएम। ठीक है, सो फ्लोएम का जो फूड, मतलब फ्लोएम के थ्रू जो फूड ट्रांसफर हो रहा है ना, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसलोकेशन हो रहा है जब फूड ट्रांसफर हो रहा है, जब वाटर ट्रांसफर हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। एक्चुअली वाटर ट्रांसफर तो ट्रांसपोर्टेशन में आ रहा है, ट्रांसपीरेशन सिर्फ नहीं हो रहा है। ट्रांसपीरेशन से के थ्रू क्या होता है, गैसियस सब्सटेंस बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो वाटर सिर्फ ट्रांसपीरेशन के थ्रू नहीं होता है, ट्रांसपीरेशन होगा, कोहिशन होगा, एडेशन होगा। ओके, उसके बाद टेंशन होगा। मतलब फर्स्ट ऑस्मोसिस हुआ, वाटर का ट्रांसफर जो होता है ना वो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, आप लोगों को समझना है। और ट्रांसपीरेशन मेथड से एक्चुअली में जो होता है वो गैसियस सब्सटेंस, मतलब CO2 O2 जो होता है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, गैसियस सब्सटेंस से ट्रांसफर होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन तो इसको बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन। सो वाटर का जो ट्रांसफर होता है ना उसमें क्या होता है, फर्स्ट इट विल टेक वाटर फ्रॉम सॉइल टू इनसाइड द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के वजह से ये अंदर आ गया, रूट में आ गया। अभी रूट में क्या होगा, एक्चुअली तो ये तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जा रहा है ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचता है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहा है, उल्टा साइड में। कैसे जा रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट में ऑस्मोसिस के थ्रू ये अंदर आ गया, अभी ये ऊपर जाएगा। ये जो सेल्स होता है ना, सेल्स होता है जो जाइलम का जो सेल होता है
वो सेल बहुत अंदर का जो वेसल्स होता है, आई मीन अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही टाइनी होता है, बहुत ही थिन होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक के साथ, एक्चुअली में जो होता है वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली एक के साथ दूसरा अटैच रहेगा। सो फर्स्ट में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन तो हो ही रहा है। डिफ्यूजन मतलब ट्रांसपीरेशन, जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज्ड हो गया। वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज्ड हो गया तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, लैक ऑफ वाटर हो गया। वाटर है नहीं, अभी वाटर चाहिए, वो गैप फिल करने के लिए नीचे से वाटर आएगा, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच रहता है, ठीक है। इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, कोहिशन। कोहिशन मतलब H2O दूसरा H2O से एक फोर्स के थ्रू अटैच रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग कोहिशन बोलते हैं। सो एक वाटर मॉलिक्यूल के मैं ऊपर ला रहा हूं तो नीचे से दो और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो भी आ रहा है, ठीक है। और ये जो ट्यूब का स्ट्रक्चर है बहुत ही टाइनी होता है, तो कैपिलरी एक्शन भी यहां पे हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल वॉल जो है होता है इसका, वेसल्स का, इस वॉल में अटैच रहेगा, ओके, टच करके रहेगा, मतलब एक फोर्स अट्रैक्शन वहां पे काम करेगा, जिसके बाद वजह से इस वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच भी रहेगा, मतलब नीचे गिरने नहीं देगा। जैसे मैं अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल हाथ से थोड़ा टच करता हूं ना, तो बहुत ज्यादा वाटर का बबल एक आके यहां पर अटक जाता है, ठीक है। क्योंकि वो वाटर का बबल क्यों आता है, क्योंकि एक बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। बॉन्ड मतलब अटैचमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ मेरा स्किन का लेयर को, वैसे इसके जो लेयर होता है इसके साथ भी एक अटैचमेंट प्रोड्यूस होता है। ये सब रीजन एक्चुअली सब मिला के ना ये वाटर मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर आता है, ठीक है। सो इसमें फंक्शन करता है, फर्स्ट ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आता है, उसके बाद कोहिशन होता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जब गैप प्रोड्यूस होता है ना, तो दूसरा एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आता है, तो उसके साथ लगा हुआ बाकी सब वाटर मॉलिक्यूल भी ऊपर आ जाता है, ठीक है। और बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से ये जो एडेशन होता है, इस अटैचमेंट को एडेशन बोलता है, ठीक है। एडेशन की वजह से ये नीचे नहीं गिरता है, वहां पे अटका हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो गैप फिल होगा, उसकी वजह से ऊपर भी आएगा, नीचे भी नहीं गिरेगा। सो इजीली ये क्या करता है, बहुत लॉन्ग जो ट्री होता है उसमें भी ट्रांसफर हो जाता है वाटर, ऐसे ही, ठीक है। वाटर ट्रांसफर का अगर प्रोसेस जानना है ना, तो डिटेल्स में एक्चुअली समझाना है आप लोगों को, एक एक चीज उतना नहीं जानना है, बस अभी के लिए इतना ही समझिए कि हाउ एक्चुअली इट्स ट्रांसफरिंग, ठीक है। सो बस इतना याद रखना, ट्रांसलोकेशन फूड ट्रांसफर हो रहा है और फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसपीरेशन के थ्रू मतलब प्रोसेस जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज्ड हो जाता है। और वेपराइज्ड क्योंकि हो रहा है तो इसके वजह से वहां पे गैप प्रोड्यूस हो रहा है, उस गैप को फिल करने के लिए नीचे से वाटर ऊपर आ रहा है, ठीक है। और प्रोसेस उसमें क्या क्या हेल्प करता है, कोहिशन हेल्प करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट, और उसमें हेल्प करता है एडेशन, ठीक है। और टेंशन क्रिएट होता है, मतलब गैप जो क्रिएट होता है ना, उसको फिल करने के लिए नीचे से आ जाता है। जैसे मैं अगर स्ट्रॉ में से कुछ भी चीज खाता हूं ना, पीता हूं, सपोज मैं पी रहा हूं, तो मैं ऊपर खींच रहा हूं, मतलब वैसे ही यहां पे हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है तो गैप बन रहा है, उस गैप को फिल करने के लिए नीचे से आ रहा है। वैसे ही मैं जब पी रहा हूं नीचे से मतलब इस गैप को फिल करने के लिए नीचे से आता रहता है, वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर तक जाता रहता है, ठीक है। इसका और भी हाइपोथेसिस है, ये जो मैंने हाइपोथेसिस बोला ये एक प्रोसेस होता है, तो कोहिशन एडेशन बोल के, ये हाइपोथेसिस मोस्ट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ट्रांसपोर्टेशन मेथड इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे एक्सक्रीशन मेथड। तब तक गुड बाय एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।